students, how are you all? I again welcome you back to my channel. We have discussed important things like union, intersection. We have seen different types of sets, their set builder form, roster form, etc. So, this chapter is about to end. Before that, we have left with few important questions based on the theory that I have already discussed. So not only from NCRT point of view, but for any competitive exam that you are going to prepare or you are preparing. So these questions will be beneficial for you. And after clearing your basics, you can move to higher level questions. So it's mandatory that you are completely done with your basics before moving ahead. Let's start with few questions based on union and intersection, and let us see few important results based on this mixing of union and intersection that you can use to solve your questions, your examples. Okay, so as you are watching on the screen, I have this universal set U, which I am representing by rectangle. So in my previous videos I have discussed everything about Venn diagram, so you can go back and check. I have this universal set U and I have two sets A and B, and I'm representing them with the circle and some horizontal lines to tell the intersection between these two sets. इनका जो common portion है वो intersection हो जाएगा दोनों के बीच में. ओके, इफ समवन आस्क यू कि ए यूनियन बी में एलिमेंट्स कितने हैं, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी. ए यूनियन बी आपको पता है कि ओवरऑल जो ए और बी से बनेगा और कॉमन पार्ट हम अवॉइड करेंगे, उसी का यूज करके आई कैन इजीली फाइंड दिस थिंग. हाउ? इफ यू कैन सी कि अगर मैं ए वाला पोर्शन इंक्लूड करूं, ए मेरा ये हो जाएगा, राइट, और बी मेरा ये हो जाएगा. बट आप देख रहे हैं ए और बी में जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है वो दो बार आता है, लाइक इट कम्स ट्वाइस. ए इंटरसेक्शन बी पार्ट इज रिपीटिंग while calculating the number of elements in A union B. So क्या होना चाहिए? Number of elements in A union B will be number of elements in A plus number of elements in B. But at this time there is a repetition of the intersection part which comes twice. A के जो number of elements count करने के time पे भी intersection के elements count हो चुके हैं और B में भी number of elements count करने के time पे intersection में जो elements है वो count हो चुके हैं. तो हमें एक बार वो जो है माइनस करने पड़ेंगे हमारे इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स ताकि वो रिपीट ना हो. और हम करते भी ऐसे हैं, जब अपना सेट बनाते हैं ए और बी के डालते हैं और रिपीटेशन वाले हम एक ही बार लिखते हैं. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए यूनियन बी में वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी एंड अवॉइडिंग द रिपीटेशन, सो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. तो ये आपका जो है ए यूनियन बी का फॉर्मूला बनेगा which you are watching on the screen. Or number of elements in A union B is same thing as you are watching. A except B part which avoid the intersection part, B except A part which avoid the intersection part, and separately A intersection B. So number of elements in A union B can also be written like this: number of elements in A except B, number of elements in B except A, and number of elements in A intersection B. So one and the same thing, both will give you the same answer. And in fact you can derive this thing from this part also. How? If I suppose if I add and subtract the intersection part, yes, so I can always do that, right? So same number से add और subtract करने से कुछ difference नहीं आएगा. तो अगर आप एक चीज देखें यहाँ पे number of elements in A except B को और इंटरसेक्शन को मैं ऐड करूंगी, तो ये जो होगा ऐड करके मुझे A के एलिमेंट्स दे देगा, और जो मेरा B एक्सेप्ट A वाला पार्ट है वो अगर मेरा इंटरसेक्शन के साथ जुड़ेगा तो वो मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में दे देगा माइनस
ये बच गया मेरा कॉमन वाला ए इंटरसेक्शन भी। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ से मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट भी डिराइव कर सकती हूँ, और वेन डायग्राम से भी ये क्लियर है कि ए यूनियन बी के अंदर कितने हमारे एलिमेंट्स होंगे, राइट। Okay, before moving on to the union of three sets using Venn diagram, let's see a few questions firstly based on the union of two sets and finding the number of elements between them. So let's start with the question. Okay, so before moving further to the questions of union of three sets, I have solved this question for you, and let me explain now. So, in a school, there are 20 teachers who teach mathematics or physics. 12 of them teach mathematics, and 4 teach both physics and mathematics. And you need to tell me how many teach physics. तो आप देख सकते हैं मैंने वेन डायग्राम बनाया है, और जो सर्कल्स हैं वो आपके मैथ्स और फिजिक्स टीचर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो आपका जो कॉमन है ये बताता है कि मैथ्स एंड फिजिक्स कितने टीचर्स पढ़ा सकते हैं, वो है 4। ठीक है, यूनियन यहाँ पे 20 है, इसका मतलब है आपके यहाँ पे जो मैथ्स वाले टीचर्स प्लस जो आपका काउंट है फिजिक्स वाले टीचर्स का, माइनस जो आपका इंटरसेक्शन जो मैंने अभी बताया था कॉमन पोर्शन, वो माइनस करके जो नंबर निकलेगा वो है आपका 20, राइट। और मैथ्स पढ़ाने वाले कितने हैं यहाँ पे 12, जो मेरा ये वाला पोर्शन है ये आपका मैथ्स वाला है। तो आप इसमें देख सकते हैं इसमें वो भी आता है पोर्शन जो सिर्फ मैथ्स वाले हैं, और साथ में कॉमन वाला भी आता है। ये कंप्लीट है आपका नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स जो कि 12 है। इंटरसेक्शन मीन्स जिनको दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ाने आते हैं वो है 4, और ये जो इतना पोर्शन है आपका फिजिक्स वाला उसके अंदर सिर्फ फिजिक्स प्लस कॉमन वाले आएंगे, तो वो आपको निकालना है, राइट। तो नंबर ऑफ टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको अभी प्रीवियस उसमें करवाया है। तो वो है कि जो आपके मैथ्स वाले टीचर्स हैं जो जो होते क्या हैं, ओनली मैथ्स प्लस इंटरसेक्शन वाले, राइट। ये आपका फिजिक्स वाले टीचर्स ये आपको निकालने हैं जो एक्चुअल में क्या है, सिर्फ फिजिक्स प्लस कॉमन पोर्शन वाले, राइट। और ये आपका माइनस है इंटरसेक्शन। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी, राइट। 20 मैंने पुट कर दिया, 12 एंड इंटरसेक्शन के लिए 4। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 12 टीचर्स निकल के आएंगे। ये वो है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, सिर्फ फिजिक्स नहीं, बी केयरफुल। फिजिक्स का यहाँ पे इसका ये मतलब है वो टीचर्स, इसके अंदर वो वाले भी आ सकते हैं जो आपको मैथ्स पढ़ाते हैं कॉमन वाले। तो जो ये पूरा जैसे मेरे पास ये वाला पोर्शन है पूरा ये फिजिक्स का है, ये पूरा मेरे पास मैथ्स का है, और ये मेरे पास कॉमन पोर्शन है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स का अकाउंट निकाल सकते हैं, जो कि आपका 12 आएगा इस केस में, राइट। So let's move to our next question. We have a class of 35 students in which 24 like to play cricket, which can involve those also who like to play football. So 24 here doesn't mean that only cricket, okay? So 16 like to play football in the same way, and each student like to play at least one of the two games. Now ये जो line है each student like to play at least one of the two games, ये important है। उसकी वजह से जो आपके यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स हैं, या मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, वो सेम है जो कि है आपके 35। देखो अगर ऐसा होता कि 35 स्टूडेंट की क्लास है और आपकी ये लाइन नहीं लिखी होती यहाँ पे, तो आपको जो है 35 यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट होता है जो कि आपकी क्लास के बच्चे हैं, बट यहाँ पे फिर x यूनियन y कुछ और हो जाता है, राइट। अगर ये लाइन आपकी नहीं लिखी होती, बट अब यहाँ पे ये लाइन लिखी गई है, तो मतलब जितने भी बच्चे उनको किसी ना किसी स्पोर्ट में तो इंटरेस्ट है ही इन दोनों में से, तो जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y वो क्या हो जाएंगे 35। x यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि वो सेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स का, those who like playing cricket, और वाई मैं यहाँ पे वो बोल रही हूँ जिनको फुटबॉल खेलना पसंद है।
right? Hope this is clear to you. Okay, so X here is the set of students who play football, including the common one, and Y here is the set of students who play football. तो previous केस में जैसे हमने किया था यहाँ पे number of elements in X union Y कितने होंगे, number of elements in X plus number of elements in Y minus the common one, वो students जिनको दोनों games खेलना पसंद है, right? तो ये हमें find करना है जिनको दोनों games खेलना पसंद है, और ये हमें actual में 35 given है, ये भी हमारे पास है, ये भी है, तो आई थिंक वी कैन इजीली फाइंड दिस इंटरसेक्शन वाला पार्ट. तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 35 इज जो जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है वो है मेरे 24, फुटबॉल वाले हैं यहाँ पे 16, और ये है कॉमन पोर्शन, मतलब जिनको दोनों गेम्स मेरी यहाँ पे पसंद है खेल, राइट? तो लेट मी राइट इट फॉर यू. ओके, तो इफ यू सॉल्व दिस, ये आपका हो जाएगा 40. तो आप इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपका 40 माइनस 35 वो आ जाएगा 5. तो 5 आपके स्टूडेंट्स वो है जिनको आपकी दोनों गेम्स खेलना पसंद है. तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लाइक यूनियन भी पूछा जा सकता है, या फिर जिनको कोई एक गेम खेलना पसंद है वो भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक गेम खेलना पसंद है वो भी पूछा जा सकता है, कॉमन या दोनों गेम्स खेलना पसंद है वो भी पूछा जा सकता है. तो इसी फॉर्मूला से कुछ भी क्वेश्चन आपको बन के आ सकता है, बस आपको जस्ट उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए. फाइन. Okay, so let's start with our next question. We have 400 students in one class, out of which 100 take apple juice, 150 take your orange juice, and 75 students है जिनको दोनों ही पसंद है, एप्पल एज वेल एज ऑरेंज. आपको मुझे वो स्टूडेंट्स बताने हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं है, ना ही वो एप्पल जूस लेते हैं ना ही वो ऑरेंज जूस लेते हैं. तो ये हम कैसे करेंगे, राइट? तो मैंने यहाँ पे वेन डायग्राम बनाया है. यहाँ पे जो यूनियन है वो है आपके स्कूल के टोटल स्टूडेंट्स जो कि है 400, राइट? ये फर्स्ट सर्कल है ये एप्पल जूस लवर्स को बताता है, और जो सेकंड सर्कल है ये ऑरेंज जूस लवर्स को बताता है, और ये जो कॉमन पोर्शन है ये जो दोनों जिनको पसंद है वो बताता है. तो ए जिनको ये एप्पल पसंद है इंक्लूडिंग द कॉमन वन वो है आपके 100, और ये ऑरेंज लवर्स इंक्लूडिंग द कॉमन वन ये जो है आपके 150, और जिनको दोनों पसंद है वो है 75. तो 100 के अंदर आपके सिर्फ ए और कॉमन वाले आते हैं, और जो है 150 के अंदर सिर्फ ऑरेंज प्लस कॉमन वाले आते हैं, राइट? तो आपको जो है वो बताना है जिनको कुछ भी पसंद नहीं है. बट अगर मैं इस पूरे पोर्शन की बात करूं तो ये तो ए यूनियन ओ हो जाएगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर मैं देखूं तो ये वाला पोर्शन जो मैंने स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बचा हुआ पोर्शन ये वो है, और आपको यही निकालना है, क्योंकि इन दो सर्कल्स के बाहर अगर आप चले गए तो इसका मतलब है कि ना ही आप एप्पल लवर हैं और ना ही आप ऑरेंज जूस लवर हैं. तो ये चीज आपको यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, राइट? तो हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं हम उनको यूज करते हैं. एप्पल और ऑरेंज जूस लवर्स जो है वो कौन से होंगे, यूनियन जिनको ए और ओ पसंद है, तो वो कौन से हैं, ए वाले प्लस आपके ऑरेंज वाले माइनस आपके कॉमन वाले, राइट? ये हो जाएगा. ये हमारे पास आंसर 100 गिवन है, ये हमारे पास 150 गिवन है, कॉमन आपको 75 गिवन. सो आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व दिस. 250 माइनस 75 आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 250 माइनस 75, ये आपका आएगा 175, राइट? तो ये तो मेरे आ गए, इसके अंदर एप्पल और ऑरेंज लवर आ गए हैं, और रिपीटेशन मैंने अवॉइड कर दी है, वो एक ही बार काउंट कर दिया है, राइट? तो वो आ जाएंगे आपके पास 175. बट अभी मुझे जो स्टार से डिनोटेड पोर्शन है ना वो निकालना है जिनको कुछ भी नहीं पसंद. तो टोटल 400 स्टूडेंट्स हैं, इसमें वो वाले आगे जिनको एक तो पसंद है ही, ठीक है,
तो इसको अगर मैं माइनस कर दूंगी तो वो वाले निकल के आ जाएंगे जिनको कुछ भी पसंद नहीं, और वो ग्राफ से भी दिख रहा है ना, टोटल U 400 है, A यूनियन B जो है वो 175 है, तो माइनस करेंगे तो वो स्टार वाला पोर्शन आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं यूनियन देखूं तो वो है टोटल मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स, और ये मेरे पास आ जाएगा 175। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी यहाँ पे, तो ये मेरा 400 माइनस 175, अब इसको सॉल्व करके देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा 225। तो 225 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं पसंद है। तो ये मेरा किसको डिनोट कर रहा था, आपके कौन सा था ये, टोटल यूनियन में थे, और एप्पल और जो ऑरेंज जूस लवर है वो, ठीक है। ए मैंने यहाँ पे एप्पल जूस लवर्स डिनोट किया, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस लवर डिनोट किया। तो देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। आपको वेन डायग्राम्स की भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है यहाँ पे। Okay, so let's see our next question. This is the last question for the day. So 200 individuals are there जिनको कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर है, जिसमें से 120 जो है that were exposed to C1, 50 exposed to C2 and 30 both exposed to both the chemicals, right? तो आपको इसमें वो इंडिविजुअल्स बताने हैं जो सिर्फ C1 से एक्सपोज हुए हैं, C2 से नहीं हुए हैं, और वो जो सिर्फ C2 से हुए हैं, C1 से नहीं हुए हैं, और थर्ड C1 या C2 से एक्सपोज हुए हैं, राइट। सो I have considered here you to be the individuals जो कि किसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। ए वो हैं जो C1 से एक्सपोज हुए हैं, और बी वो हैं जो कि C2 से एक्सपोज हुए हैं। तो आप वेन डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने ये वाला पोर्शन बनाया है, जो सिर्फ ये पोर्शन आएगा वो सिर्फ C1 से एक्सपोज्ड वाले हैं, C2 वाले नहीं हैं, और ये पोर्शन उनका आएगा जो सिर्फ C2 से एक्सपोज है, C1 से नहीं है, और ये जो इंटरसेक्शन भी कॉमन पोर्शन है जिनको दोनों से एक्सपोज हो चुके हैं, राइट। तो हमें यहाँ पे जो निकालना है वो है आपके नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज्ड टू ओनली वन केमिकल A बट नॉट दी अदर वन। तो मैंने आपको ये शेड करके भी बताया, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो मेरा पूरा आएगा, पूरा इंक्लूडिंग द इंटरसेक्शन, इसके अंदर आपके जो C1 से एक्सपोज्ड हैं वो वाले हैं, तो वो जो आएगा वो आपके सिर्फ C1 वाले, प्लस अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो ये वो वाले आ जाएंगे जो आपके C1 केमिकल से एक्सपोज्ड हुए हैं इंडिविजुअल्स, वो जो कि आपको क्या गिवन है, वैल्यू इसकी गिवन है आई थिंक 120, राइट। तो ये आपके 120 आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो सिर्फ C2 से एक्सपोज हुए हैं और मैं उसमें कॉमन वाला भी ऐड कर दूं, तो ये आपके आ जाएंगे C2 वाले। देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिर्फ C2 एंड C2, राइट। तो ये वाले मेरे आ जाएंगे 50। तो अब आपको ये पोर्शन निकालना है, और ये दोनों आपको ऑलरेडी गिवन है। तो ये मेरे पास सॉल्व करके क्या आ जाएगा, वो मुझे कॉमन दिया हुआ है ना 30, तो 120 माइनस 30 विच इज 90। तो ये वो वाले हो जाएंगे जो सिर्फ C1 से एक्सपोज हुए हैं, राइट। उसी तरीके से सिर्फ C2 से एक्सपोज वाले कैसे निकलेंगे, 50 माइनस 30 जो कि आपका हो जाएगा 20, राइट। तो जो सिर्फ मेरा ये वाला पोर्शन आया था A माइनस बी, ये आपका आया था 90 आया है, और ये वाला आपका आ गया 20, और A इंटरसेक्शन B कितना था हमारे पास 30, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, तो आपके पास A एक्सेप्ट B भी आ गया, B एक्सेप्ट A भी आ गया, A इंटरसेक्शन B भी आ गया, और हम पहले कर भी चुके हैं फॉर्मूला, राइट। तो C1 और C2 का यहाँ पे क्या बन जाएगा, वेरी सिंपल, हमें तीनों को जस्ट ऐड ही तो करना पड़ेगा, किस किस को, 90 को, 30 को, और यहाँ पे 20 को। तो क्या बन जाएगा, टोटल 140, राइट। तो जो C1 और C2 का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 140, राइट। तो मैं उसको यहाँ पे लिख देती हूँ साइड पे, A यूनियन B, A एक्सेप्ट B वाले, B एक्सेप्ट A वाले, प्लस कॉमन वाले, यही होंगे ना। ये हमारा हो जाएगा 90, 20,
और 30, ठीक है। ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 140, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका आ जाएगा सॉल्व करके 140, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। डन। सो होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। Okay, using our previous knowledge of theory, let's calculate the number of elements in the union of these three sets, right? A union, B union, C. ये हम कैसे निकालेंगे? तो जो इसका फॉर्मूला है उसके लिए हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B कितने होते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, अगर मैं इसको एक सेट मानूं, डेफिनेटली यूनियन विल आल्सो बी अ सेट ना। तो अगर मैं इसको एक सेट और इसको एक सेट मानूं और अपनी ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, तो ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी यूनियन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, राइट। यही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं फिर से B और C को दो सेट मानूं और अपना दो सेट्स के यूनियन वाला फॉर्मूला लगाऊं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B प्लस C माइनस B इंटरसेक्शन C, राइट। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स का यूज करके। तो अभी हम यहाँ पे आ गए, राइट। जो वेन डायग्राम की हेल्प से मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बता चुकी हूँ। तो जो आपका A इंटरसेक्शन B यूनियन C क्या होता है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो इसको मैंने जो है प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ पे हमने जो है वेन डायग्राम्स के थ्रू ये चीज़ सीखी थी। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। तो जो ये मेरा राइट हैंड साइड है, अब वो क्या बन जाएगी आपके पास, number of elements in A plus number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in B intersection C minus, ठीक है। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख रही हूँ number of elements in A intersection B यूनियन A इंटरसेक्शन C, राइट। ये फिर से दो सेट हैं, राइट। A इंटरसेक्शन B भी यहाँ पे जो है आपके पास सेट है और A इंटरसेक्शन C भी सेट है। दो सेट्स के फिर से यूनियन का यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, जो आपको ऑलरेडी पता है क्या होता है। तो वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो लेट्स सी क्या बन के आएगा यहाँ पे। ओके, सो दिस विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट plus number of elements in this set minus intersection, ठीक है, A intersection B इंटरसेक्शन विद A इंटरसेक्शन C, यही बन के आएगा मेरे पास, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस B प्लस C माइनस, ये वाला मैं पहले लिख रही हूँ, लिख सकते हैं हम A इंटरसेक्शन B, फिर ये लिखेंगे हम एक सीक्वेंस के लिए जस्ट B इंटरसेक्शन C, फिर ये वाला बाहर इसके साथ माइनस है तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन C, फिर ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। बट अब वो बनेगा क्या, देखिए अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो तीन सेट्स के इंटरसेक्शन की बात की गई है। A का B के साथ इंटरसेक्शन और A का C के साथ इंटरसेक्शन मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ A B एंड C का कॉमन पोर्शन, राइट। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है इस चीज को मैं आपको वेन डायग्राम से भी बता देती हूँ। जो A इंटरसेक्शन B है वो है ये वाला पोर्शन, राइट। A इंटरसेक्शन C है ये वाला पोर्शन। अब इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वो आता है ये वाला पार्ट, जो कि हो जाएगा, जो मैं फिल कर देती हूँ पूरा, ये पार्ट जो कि है आपका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो इसीलिए मैं इसकी जगह लिख सकती हूँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो जो आपका यूनियन का फॉर्मूला निकल के आया वो है ये number of elements in A plus B plus C minus common elements in AB, common element minus common elements in BC minus common elements in AC plus common elements in all these three sets,
राइट। सो इस तरीके से आप 3 सेट्स का भी यूनियन निकाल सकते हैं। इसको एक्सटेंड करके इसका यूज करके आप 4 का भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने 2 का यूज करके यहाँ पे 3 का निकाला है, राइट। तो मैंने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और यूनियन ऑफ 2 सेट्स का यहाँ पे यूज किया है, और इंटरसेक्शन के पोर्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे अपना वेन डायग्राम यूज किया। इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, आप पूरा भी वेन डायग्राम से कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ देम। इफ यू वांट मैं आपको और भी इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। सो ये मेरा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट है, जो अभी हमने लास्ट में किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन और यूनियन ऑफ 2 सेट्स से रिलेटेड एग्जांपल्स किए थे। वैसे और एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो होप यू लाइक माय टुडेस वीडियो। सो इफ you like my video, do share it, like it, subscribe it. So I'll meet you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing, keep learning.